بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام براڈکاسٹنگ چینل. BBC براڈکاسٹنگ چینل پر سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، BBC براڈکاسٹنگ چینل سے پیش خدمت ہے ہمارا خصوصی سیگمنٹ کاؤنٹر انکاؤنٹر کا یہ تازہ شمارہ. آئیے دیکھتے ہیں کاؤنٹر انکاؤنٹر. جہاں ناظرین، جن محترمہ کو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں اقرا جان، جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی یہ سپوکس پرسن ہے. یہ ویڈیو کلپ جس کو میں ابھی تھوڑی دیر بعد پلے کرنے والا ہوں، اس میں اقرا جان سیاسی نہیں بلکہ تجارت کی بات کر رہی ہے. حالانکہ یہ ویڈیو کلپ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر گشت کر رہی ہے. ہزاروں ویورز ابھی تک اس ویڈیو کلپ کو دیکھ چکے ہیں اور ریسپانس میں ملا جلا رد عمل ظاہر کر چکے ہیں. BBC کی ٹیم نے اس ویڈیو کلپ کو کاؤنٹر انکاؤنٹر سیگمنٹ کے لیے منتخب کر لیا ہے. ناظرین، آئیے پہلے اس ویڈیو کلپ کو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پھر پروگرام کے اس پر اس ویڈیو کلپ کا کاؤنٹر انکاؤنٹر کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. نیشنل کانفرنس جو ہے کیڈر بیسڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم یہاں کے لوگوں کا حال دیکھتے ہیں. دو تین چیزیں میں نے دیکھی ہیں جس پہ میں یہاں کی عوام سے ایک طرح سے ان سے بات کرنا چاہتی ہوں. یہاں کی عوام سے پہلی بات، نیشنل کانفرنس میں ہمارے جو دکاندار ہیں، نیشنل کانفرنس دیکھ رہی ہے کہ ہمارے جو دکاندار ہیں ان کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. ہمارے جو مارکیٹس ہیں وہ بالکل ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے، اس کی وجہ بالکل یہ ہے کہ BJP نے جو جموں اور کشمیر کے ساتھ کیا. یہاں کے جب روزگار نہیں ملا، یہاں کی جب لوگوں سے حق چھینے گئے، یہاں دکانیں بند کی گئی، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوا، اس سے بالکل روزگار تباہ ہو گیا. لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو آن لائن شاپنگ کی آگ لگی ہوئی ہے. آن لائن شاپنگ مز کیا چھُ گژھان کہ اگر میں آسہِ نا ٹُتھ پیسٹ ضرورت، بہٕ چھَس وۄتھان فونس پہ کران ٹک 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 ٹک، ٹوتھ پیسٹ چھس بہ آرڈر کران ٹک 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 ٹک، اور ٹوتھ پیسٹ میرے گھر پہنچ جاتا ہے. یہ جو امہ سۭتۍ چھِنہٕ أسۍ لیکن سونچان اما یُس اَسہِ یہِ دُکاندار نیبرٕ کَنۍ چھُ، یُس اَسہِ یہِ پَنُن بوے نیبرٕ کَنۍ چھُ، یہِ کیٛاہ کھیٛانایہِ پنٛنِس عیالَس. أمِسٕے زٕ شُرۍ چھِ، أمِسٕے ترٛےٚ شُرۍ چھِ، أمِسٕے بٮ۪مار موج چھِ، أمِسٕے بٮ۪مار مول چھُ، أمِسٕے گَرُک لون چھُ، أمِسٕے سکوٗٹرُک لون چھُ. یہِ کیٛاہ کَرِ؟ یہِ چھِنہٕ أسۍ، اَسہِ چھُ أچھن چھُنہٕ اَسہِ وۄنۍ یہِ گاش روٗدمُت کینٛہہ. أسۍ چھِ کَران صرف ٹِک 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 گَرِ بِہِتھ، چاہے کینٛہہ تہِ آسہِ، کِتابہٕ آسن، میک اپ آسہِ، پٔرفیوٗم آسہِ، کھٮ۪ن چٮ۪نُک سامان آسہِ، پَلو پوشاک آسہِ، زیادٕ پَلو پوشاکَس نار لوٚگ پَلو پوشاکَس، ہوزری دُکان گٔے بِہِتھ، چَپنہِ دُکان چھِ بِہِتھ، کُنی چھُنہٕ دُکانَس پٮ۪ٹھ کَسٹمر کانٛہہ. کیٛازِ کہِ سٲری چھِ ٹِک 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 آن لایِن کَران. مےٚ ؤنۍتو، أسۍ چھا ییٚتِچ عوام چھا یَژھان کہِ تُہُنٛد یِم دُکاندار بٲے گژھن بۄچھِ مَرٕنۍ؟ یی چھا تُہُنٛد مُطالبہٕ؟ اگر یہِ سون مُطالبہٕ چھُ کہِ اَسہِ گژھِ پنٛنی اِکنامی ڈُباوٕنۍ، اَسہِ چھُ پنٛنٮ۪نٕے بایَن ہَٹہٕ دیُن، تیٚلہِ چھِ أسۍ ٹھیٖک پَکان. لیکن اگر اَسہِ مُطالبہٕ چھُ کہِ پنٕنۍ اِکنامی چھِ تھوٚد کھڑا کَرٕنۍ، پَنُن پرٛافِٹ اگر 2 رۄپیہِ پرٛافِٹ چھُ چِپٕس پیکیٹَس منٛز یِوان، 10 رۄپیہِ چھُ یِوان کُنہِ بٔڑِس چیٖزَس منٛز، یُس یہِ پرٛافِٹ چھُ، اَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ پنٛنِس بٲے سُنٛد، پنٛنِس ہمساے بٲے سُنٛد گَرٕ بَساوُن، أمۍ سٕنٛدِس بَچہِ سُنٛد فیٖس بَرُن. اگر سُہ مُطالبہٕ چھُ، تِتھَے کٔنۍ پٔکِو برٛونٛٹھ، یُتھ کٔنۍ پٔکِو نہٕ برٛونٛٹھ. خبر کٕمَن چھِو دِوان پرٛافِٹ؟ تۄہہِ چھُو باسان اَسہِ کیٛاہ، اَسہِ اوٚن 500، اَسہِ اوٚن 1000، اَسہِ اوٚن 1500. اَمی سۭتۍ چھُ نار لگان. یہ جب 1500 آپ کے 1500، اس کے 1500، اس کے 1500، اس کے 1500، یہ پہاڑ بن جاتا ہے. یہاں کی اکنامی برباد ہو گئی ہے اس آن لائن شاپنگ سے. میں لوگوں سے، خاص طور پہ نوجوان قوم سے، کیونکہ میں خود ایک نوجوان ہوں، میں نوجوانوں سے جموں اور کشمیر کی اپیل کرتی ہوں.
जब तक आपको कोई एक्सट्रीम मजबूरी ना हो, इस ऑनलाइन शॉपिंग के इस बला को, इस ड्रग को, ये एक तरह से ड्रग एडिक्शन हो गई है, इस ऑनलाइन शॉपिंग की इस ड्रग एडिक्शन को ख़त्म कीजिए और यहाँ पे अपनी लोकल, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को सपोर्ट कीजिए, उनके दुकानों को सपोर्ट कीजिए। यहाँ डूब रहा है सब मार्केट और आप सो रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, आपने इकरा जान की ये जज्बाती प्रेस वार्ता सुनी होगी गौर से। मैडम इकरा जान अपनी जज्बाती प्रेस वार्ता में अवाम से मुखातिब होकर कह रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कॉर्डर बेस्ड तंजीम है, इसलिए इस पार्टी को यहाँ के एक एक फर्द का ख्याल रखना है, ख़ासतौर से दुकानदारों और ताजर पेशा अफराद का। इकरा जान ने बतौर ख़ास आज की प्रेस वार्ता में ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, ऑनलाइन मार्केटिंग को टारगेट किया है और इनके मुताबिक इस सिस्टम की वजह से हमारी यानी जम्मू कश्मीर की जो इक्तिसादी सूरत हाल है वो गर्क हो चुकी है। मैडम इकरा जान ने जम्मू कश्मीर की आवाम को मशवरा दिया है कि अगर वो अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम से परहेज करना चाहिए। नाजरीन, अगरचे इकरा जान ने इस प्रेस बयान में सियासी नहीं तुजारती गुफ्तगू की है, लेकिन यहाँ पे मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इस बात के पीछे, इस तुजारती बात के पीछे भी सियासत कहीं ना कहीं छुपी हुई है। इकरा जान पूरी तैयारी करके आई थी प्रेस के सामने ताकि यहाँ के ताजर पेशा अफराद और दुकानदारों को ब्लैकमेल, जज्बाती तौर ब्लैकमेल किया जा सके। इकरा जान भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है, लेकिन असल में अभी इकरा जी एक बोली बाली बच्ची है। पता नहीं इसको ये इकोनॉमी का पार्ट किसने पढ़ाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब, सीनियर लीडर अब्दुल रहीम रातिर साहब जो बहुत बार फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इन लोगों को हमने कभी नहीं सुना अवामी जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मईशत की बात करते हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ जम्मू कश्मीर में लगभग 30-40 बरस तक हुकूमत करती रही। अपने दौरे इक़्तिदार में इस पार्टी ने कभी भी यहाँ की मईशत की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर इस पार्टी ने यहाँ की इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया होता तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गुर्बत नहीं होती, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी नहीं होती। इस पार्टी ने अपने दौरे इक़्तिदार में यहाँ पर अकरबा परवरी और रुश्वतखोरी के निज़ाम को हमेशा परवान चढ़ाया। आज जबकि इन लोगों को वक्त के थपेड़ों ने भिखारी बना के रख दिया, तब जाके इनको यहाँ की इकोनॉमी और मईशत याद आने लगी। मईशत नामी इस राग को अलापने के लिए अगरचे पार्टी सदर को सामने आना चाहिए था, पार्टी वाइस प्रेसिडेंट को सामने आना चाहिए था, पार्टी में मौजूद कई बार रह चुके फाइनेंस मिनिस्टर को सामने आना चाहिए था। नहीं, उन्होंने एक मासूम बच्ची को आगे कर दिया और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हमारी बहन अपने आप को सियासी लीडर से ज़्यादा सियासी मॉडल के तौर पर पेश करने में मसरूफ़ है। खैर, रही बात ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की, इकरा जी अगर आपके पास टाइम है तो मेहरबानी करके मेरी ये बात गौर से सुन लीजिएगा। जी हाँ, आज की डेट में जम्मू कश्मीर की कुल आबादी का 0.025% लोग ही इस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 99.99% लोग यहाँ के लोकल मार्केट के साथ ही अभी तक जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के ज़रिए से जो ओला क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम खरीद लेते हैं वो हमें लोकल मार्केट से कम बेश 75% लेस प्राइस पर दस्तयाब होते हैं। जो पैसा ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के ज़रिए से हमें बच जाता है, भले ही उस पैसे से हमारे दुकानदार भाई, हमारे ताजर भाई की
इकोनॉमी बढ़ नहीं जाती है, लेकिन हमारे घर की जो बजट है वो सुधर जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की वजह से एक और फायदा यहाँ के ग्राहकों को मिला है, वो ये कि असल में एक ओला क्वालिटी की चीज की कीमत क्या होती है। हमें आज पता चल रहा है कि हमारे दुकानदार भाइयों ने, हमारे ताजर पेशा भाइयों ने हमें बहुत लूटा है आज तक। आप देख रहे होंगे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की वजह से ही हमारे दुकानदार भाइयों ने इस सिस्टम को डिफीट देने के लिए किस तरह से अपने ओला क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की कीमतों में किस कदर कमी करने का ऐलान दिन रात किया करते हैं। जो सूट यहाँ के लोकल बाजार में पहले 5,000 का मिला करता था, अब सिर्फ 500 का मिलता है। जो बूट यहाँ के लोकल बाजार में अब तक 2,000 का मिला करता था, अब सिर्फ 200 में मिलता है। जो किताब यहाँ के लोकल बाजार में 2,000-3,000 की मिला करती थी, अब सिर्फ 200-250 में हमारे घर पहुंच जाया करती है। हमारे दुकानदार भाइयों ने हमें आज तक बहुत लूटा है, लेकिन अब नहीं, अब कोई लूट मार नहीं चलेगा। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम नए जमाने का नया तकाजा है और हमें इस नए तकाजे से फायदा बहरहाल उठाना ही पड़ेगा। अब यहाँ की कोई सियासी पार्टी या फिर कोई सियासी लीडर हमारे यहाँ के खरीदारों को ब्लैकमेल, जज्बाती तो ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का एक और फायदा हमारी सोसाइटी को इस वक्त मिल रहा है, वो ये कि इस सिस्टम के साथ हमारे सैकड़ों बच्चे इस वक्त तालीम याफ्ता बच्चे जुड़ चुके हैं। हमारे हजारों तालीम याफ्ता बहन भाई नौकरियां न मिलने की वजह से मायूस हो चुके थे, वो अब इस सिस्टम के साथ जुड़कर अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार हासिल कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं तो और क्या है। इकरा जी, आपके सियासी लीडरों और सियासी असलाफों ने यहाँ के कुदरती ज़खायर और यहाँ के कुदरती वसाइल को बेच खाया है। उन चीज़ों से किसी रियासत की, किसी मुल्क की इकोनॉमी बढ़ जाती है, सुधर जाती है। खुदा न खास्ता अगर कभी आपकी पार्टी के पास यहाँ का इक़्तिदार दोबारा से आए, तब जाके उन ज़खायर को, उन वसाइल को, कुदरती वसाइल को वापस लेके आना, जिनकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की मैशत सुधर पाएगी। नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।